Hello, everyone. So, we were discussing about a RNN code in which we have to predict a next word. So, in the previous class, I explained you some codes. Working also, I explained of RNN. That means re explained by taking the note, or I would say notable examples like cat, mat, rat, and also the prediction of a next number in a sequence by considering 1 2 3, output is 4, then 2 3, then 2 3 4, output is 5. Okay. Embedding also I explained, very important concept, embedding, encoding, because these concepts are like we have to use in language models also. All right. So embedding I explained, padding I explained, truncation I explained. Okay. So all these concepts related to the text analysis I explained. And here we are to see one more code based upon RNN to produce a next word in a sequence. Okay. So let's yes, in yesterday class I have gone through this code, but I told you that I will explain it again thoroughly. Okay. So NumPy, TensorFlow. So our main library here is TensorFlow, which is the framework, deep learning framework. Okay. I am importing tokenizer, pad sequences, model sequential, embedding, simple recurrent neural network, and dense. These layers I am importing. Only the model is sequential, rest are the layers embedding, simple RN, and dense. And tokenizer and pad sequences are pre processing techniques of text. Okay. And I took a simple text. Artificial intelligence is the future of technology. Machine learning is a part of AI. Deep learning is the subset of machine learning. Neural network are used in deep learning. So this is a text. Okay, fine. I need to tokenize the text. I need to create tokens of text. Okay. So let me share my entire screen and tell you about the process of tokenization, because text is considered as a sequential. From now onwards, we are considering text as sequential. Okay. Previously, when we do deal with machine learning algorithms, there we don't talk about text as a sequential data. But here we are considering it as a sequence. Okay. That's the reason we created RNN. All right. So, tokenizer. See, if you want to interpret a text, no, so you have to divide it into tokens. That means elements, or you can say lexemes. Okay. So if I have written AI is this, okay, you can check the statement. Artificial intelligence is the future of technology. I have to consider artificial, comma, intelligence, comma, is, comma, the, comma, future, comma, of, comma, technology. These are the tokens. Every word is a token. I told na, elements, lexemes, or you can say words.
Every word is a token. That is the first step. Okay, that is the first step when we are going to perform the pre-processing. You have to tokenize. Okay. However, there are few more steps which can be considered prior, but that are part of data cleaning. I am not performing any data cleaning here because data cleaning involves conversion of text into lower case, removal of stop words, lemmatization. I'm not considering them. Okay, I'm just considering that I am available with the text and I'm breaking it into tokens. That's it. So you have called a tokenizer and you are performing fit on text. What is this fit on text? Okay, I have mentioned the explanation of this concept fit on text. So, fit on text is a method in NLP which is used to prepare a data which can be fed into machine learning models. Okay, it will create a vocabulary index of list of text. Okay, how it will build a vocabulary? In this method, fit of text, it iterates through each word in the text and counts its frequency. Okay, how many times a word appear in my text? It will count. It creates a dictionary index of each unique word, mapped with the unique integer based upon its frequency. Okay, that means consider each and every word, count how many times it appeared in the text, and do annotate it with its frequency. All right. So you have to identify the unique words which are present in the text, and you have to find how many times this text or word present in the text appeared. That is a frequency. So you have to create a dictionary. Text pre-processing. What you are going to do is you have to. This method only builds a vocabulary and do not modify or transform the data. Okay, it only creates a vocabulary. That means what it performs. See here in your sentence, artificial intelligence is the future of technology. It created different tokens. Artificial intelligence is the future of technology. Every word is a unique word. Okay, that means they are not repeated. Okay, so I will make a dictionary or index like this. Okay, that's what I will do. Okay, serial number, word, or vocabulary, whatever you want to say, you can. Okay, word or vocabulary, and the frequency of occurrence of that word. Serial number one, artificial, one time. Serial number two, intelligence, one time. 3s, one time. 4, future, one time. Off, okay, ऑफ वन टाइम एंड सो ऑन. मतलब आपको और भी करना है. अभी टेक्स्ट कंप्लीट तो हुआ नहीं, और भी लाइंस थी उसके अंदर. सो यू हैव टू कंसिडर द यूनिक वर्ड्स और द वोकैबुलरी. वोकैब ऐसी वोकैबुलरी बनानी है आपको. वो बना लेगा, आप थोड़ी ना बनाओगे. वो तो जब आप यूज करोगे टोकनाइजेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस प्रोसेस, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. वो बन जाएगी. ओके, फिट ऑन टेक्स्ट. ऑलराइट, तो ये वोकैबुलरी बनेगी, ओवरऑल डिक्शनरी बन जाएगी. ठीक है. तो ये रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन हो गया. डिक्शनरी है ना ये, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया मेरे पास कि ऐसा ऐसा है मेरे टेक्स्ट के अंदर. उसके बाद क्या करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, देखते हैं. नाउ आपने ये तो क्रिएट कर दिया. फिर आपको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है उसे. यू हैव टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस बनाओगे तभी जाके तो आप आरएनएन को दे पाओगे ना. यू हैव टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सीक्वेंस. ओके, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा. टेक्स्ट को सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा. ओके, देन ओनली यू आर गोइंग टू फीड इट टू द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. यदि सीक्वेंस नहीं बनेगा तो फिर क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डू कंसिडर द टेक्स्ट इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ओनली. ओके, और आपने ये करा भी तो है. ये करा था ना, कैट, मैट, रैट. ठीक है. और आपने बोला था कि
ये 3 वर्ड्स हैं, ये एक पूरा सीक्वेंस बनाएंगे एंटायर। तो टाइम स्टेप t इक्वल टू 1 पर कैट जाएगा, t इक्वल टू 2 पर मैट जाएगा, t इक्वल टू 3 पर रैट जाएगा। ओके, व्हेन ऑल 3 गेट ओवर, दैट मीन्स तो वो सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मेरा न्यूरॉन था, इसके अंदर पहले कैट गया, जो आउटपुट आया वापस उठा के इसी में डाल दिया। फिर रैट गया, देन वॉट एवर भी द आउटपुट आया इट केम ना, वो वापस डाल दिया। देन फिर मैट गया, फिर जो आउटपुट आया मैट से, क्योंकि अब वो सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका, अब वापस डालने का कोई सेंस नहीं है, उसको उठा के मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया जो आउटपुट आया। ओके, और देयर इज वन मोर न्यूरॉन हियर दैट इज प्रेजेंट इन द डेंस लेयर। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन कर का काम हो रहा था यहाँ पर सिग्मोइड फंक्शन से। हियर यू विल गेट द फाइनल आउटपुट। दिस इज हाउ RNN वर्क। तो टिल हियर when the sequence is not completed, so it will recur, and when the sequence is over it will move forward, आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, ये काम करता है RNN। तो हमें भी टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, कंसिडर दिस थिंग। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, मैं आपको फिर से इसके बारे में डेफिनेशन दे दूं। ओके, सो अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंसेस के बारे में डिड आई मेंशन, दे रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बताया है आई गेस। वंस द टोकनाइजर इज फिट ऑन द टेक्स्ट वी कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यही काम कर रहा है वो, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स में कर रहा है वो से। ऑलराइट, और कैट मैट रैट को भी ये तो करा था अपन ने। ओके, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। सो कैट को क्या लिखा था हमने, वी हैव रिटन कैट एस 100, मैट को क्या लिखा था 010, रैट को क्या लिखा था 001। सो कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक्स, ओके, टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक्स और यू विल कॉल्ड एज अ वेक्टर्स। तो ये हो गया सीक्वेंस में, यानी उसको आपने न्यूमेरिकल अनोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, टेक्स्ट टू सीक्वेंस। Okay, fine. So after performing tokenization, we can convert text into sequence of integers using text to sequences method. Okay, that's what we can do, and we did. Okay, we did this thing. यही करा है हमने. All right. So convert the text into sequences. So this will be now sequence data. वो sequence data में convert हो जाएगा, numerics हो जाएगा. आप चाहो तो उसे प्रिंट करा सकते हो, यू कैन प्रिंट ऑल दिस थिंग्स। मैंने प्रिंट नहीं करा, इंटरमीडिएट स्टेप्स मैंने प्रिंट नहीं करा, बट यू कैन प्रिंट। दिस इज माई ओपन कोड ऑन Kaggle, so you can edit my code, you can see, देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। ओके, एंड देन क्या करा है मैंने, इनपुट सीक्वेंसेस तो बन गया। नाउ आई नीड टू प्रिपेयर इनपुट एंड आउटपुट पेयर। मतलब ये इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये बनाए ना हम। व्हेन माय सीक्वेंस, जैसे आपने ऊपर न्यूमेरिकल में भी तो ये करा था ना, डिजिट वाले केस के अंदर भी। ओके, वहां पर 1 2 3 आ गया था एक्स में, तो वाई में आपने 4 लिखा था। And then in X, so this is one of the sequence. It is completed, the output is 4. Then the next sequence was 2 3 4. When it is completed, the output is 5. Then the next sequence was 3 4 5. When it is completed, the output is 6. So similarly, we have to prepare our input sequence and the output. Okay, तो sequence तो बन गया. We have already converted text to sequence. That means in numerical annotations we have performed. उसको integer में convert कर दिया हमने. अब उसको आउटपुट भी देना है। तो जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो सीक्वेंस है क्या, जैसे हम ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस, ओके, इफ आई राइट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस, तो अगला क्या आएगा, द। बात समझे आप, ऐसा। फिर हम लिखें इंटेलिजेंस इज द, अगला क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड, फ्यूचर। फ्यूचर। नाउ वाई आई एम टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस थिंग्स, कोई पढ़ाए तो सही भाई, मैं तो वही देखना चाहता हूँ ना, कोई कौन पढ़ा रहा, तो मैं कौन समझाएगा, ऐसे ऐसे कोई बेसिक कोई चीज़ समझा रहा। तुम डायरेक्ट LLM पे आ कैसे सकते हो, मुझे तो मैं समझ ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि तुम डायरेक्टली लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ लो, बेसिक तो पता ही नहीं तुम्हें काम कैसे होता है। अनलेस until you don't know the basics, okay,
तो मैं उस रास्ते पे से लेकर जा रहा हूँ आपको, जहाँ पर ये आएगा बाद में। ठीक है, डायरेक्टली तो इस पे जंप कर ही नहीं सकते थे अनलेस एंड अनटिल यू नो द डोंट नो द वे। अभी भी आपको, क्योंकि दिस कोर्स इज रिलेटेड टू जनरेटिव एआई, तो एनएलपी पहले पढ़ाना चाहिए था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसमें एनएलटी के कॉन्सेप्ट्स बताना चाहिए थे। ओके, फुल बेसिक प्रोजेक्ट्स करवाना चाहिए थे। एंड फिर उसके बाद स्पेसी, टेक्स्ट ब्लॉब, देयर आर फ्यू मोर लाइब्रेरीज विच आर प्रेजेंट। ठीक है, बताना चाहिए था, लेकिन वो क्या है कि मुझे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, ये फिर अलग ही बात हो जाएगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी बातें। ठीक है, तो फिर भी वॉट एवर पॉसिबल फ्रॉम माई एंड मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, सो हियर we are trying to have output associated with the input. Okay, and this is the way the things are going on. Input sequences are given like 1, 1, 2, 1, 2, 3, something like that, and the next word in the sequence is being mentioned. ठीक है, तो एक क्या, what they did is एक empty list बनाया sequences का। ठीक है, empty list बनाया एंड एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1 टू लेंथ ऑफ द सिक्वेंसर डेटा। सो वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ द सिक्वेंसर डेटा, जितना भी होगा। ओके, सीक्वेंस डेटा का लेंथ आई डोंट नो राइट नाउ क्या होगा, बट यदि आप चाहें तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। आई कैन एडिट माई कोड, ऑल राइट, एंड वी कैन प्रिंट द सीक्वेंस डेटा ऑल्सो एंड लेंथ ऑफ द सीक्वेंस ऑल्सो, ये हम प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या है। ऑल राइट, सो okay, here you can print sequence data, sequence underscore data, and we can also print length of the sequence data, print len, length of the sequence data, ये हम कर सकते हैं। ऑल राइट, बाकी नीचे वाला है मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, आई विल यूज इट लेटर ऑन। कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी, आई एम डिलीटिंग दिस थिंग। ठीक है, पहले आई वॉन्ट टू रन दिस कोड। ओके, मैं उस कोड को रन कर रहा हूँ और वो नीचे वाला कोड मैंने यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। फर्स्ट आई वांट टू रन दिस थिंग। ओके, ऑलराइट, तो देखना चाहते हैं कि क्या है। Our session is started and there is a text given to us. We have performed a tokenization of it. That means we have created a dictionary of the words which are present in the text. Okay, and then we have converted that into text. We have converted that text into sequences. Okay, so this is how it is now created. ये कन्वर्ट कर दिया उसने, इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, इट कन्वर्टेड योर टेक्स्ट इनटू इंटीजर। सो 29 है लेंथ, दैट मीन्स ये पूरा मिलाकर वी आर हैविंग 29 वर्ड्स। ओके, वी आर हैविंग 29 वर्ड्स। ओके, अब वो कौन सा वर्ड कहाँ कैसे आ रहा है, इसने क्या करा। अब आप बोलोगे सर 7 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, तो भाई उसने क्या करा कि इस टेक्स्ट में से यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई करे। ठीक है, इट आइडेंटिफाइड द यूनिक वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। ऑल राइट, एंड उसकी जो है उसने कोई उसको सीक्वेंस नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया, सीरियल नंबर दे दिया। तो ये सीरियल नंबर ही है जो उसको दिया गया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसे। ओके फाइन, ये दे दिया उसने एक सीरियल नंबर। ओके, तो यूनिक वर्ड्स लेकर उसने उनको डिक्शनरी में रखा। ऑल राइट, एंड उसको एक नंबर दे दिया ये। ऑल राइट, एंड टोटल 29 वर्ड्स हैं मेरे पास, यूनिक वर्ड्स हैं जो इस टेक्स्ट के अंदर हैं, टोटल 29। इफ आई डू गो ओवर इट टू चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें इस जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, इस रिपीट हो गया, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। देखो 29 वर्ड्स ही तो हैं ये पूरे, इस रिपीट हो रहा, 3 बार हो गया वो, 3 टाइम्स।
ए इज ऑल्सो बीन रिपीटेड, ए भी रिपीट हुआ। ऑलराइट, तो इस तरीके से रिपीटेशन हुआ है। फाइन, ओके, एक्सपांड ना, हाँ ये रहा, ठीक है। ऑलराइट, सो sequences of 29, then what I'm trying to do is I'm taking an empty list, okay, and then I'm applying for I in range of length of sequence data, तो 29 है वो तो, ठीक है, this is 29, okay, sequences dot append sequence data colon I plus 1, what is this colon I plus 1, what I'm trying to do here, और इसको अपेंड करने से लेट मी प्रिंट द सीक्वेंसेस, क्या हो जाएगा, प्रिंट सीक्वेंसेस, ओके, बाकी इसको मैं हटा देता हूँ नीचे, ठीक है, इसको अब आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, लेट मी रिमूव दिस थिंग, कंट्रोल सी, ओके, लेट मी रिमूव दिस थिंग। So I created an empty list of a sequences and I want to add the sequences in it, तो इस तरीके से ऐड हुआ, यानी 7 8, फिर 7 8 2, फिर 7 8 2 9, ये देखो, पहले इन दोनों को लिया, फिर इन तीनों को लिया, ऑल थ्री, देन फिर 7 8 2 9 को लिया, देन 7 8 2 9 10 को लिया, देन 7 8 2 9 3 को लिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी it is adding next to next word, next to next word, it is adding. Okay, and at the end it will consider the entire 29. Okay, it will consider the entire 29. Okay, so it's first taking, मतलब वो पहले दो शब्द, 2 words, then 3 words combination, then 4 word combination, then 5 word combination, then 6 word combination, 7 word combination। तो ये क्योंकि देखो वर्ड वर्ड पे तो काम होगा नहीं, जो कुछ होता है नंबर पे ही होता है काम। Okay, so we have converted text into sequences, and obviously we are working on these sequences or numerical values only, इसी पे काम कर रहे हैं अपन। ऑलराइट, फाइन, ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा। ओके, तो कॉम्बिनेशन बना लिए, ओके, वो बोल भी रहा था ऐसे, कॉम्बिनेशन बन गया, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ कॉम्बिनेशन वी डू परफॉर्म द पैडिंग to ensure that the length of each and every sequence is equal, ठीक है, तो वट एवर बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिक्वेंस, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिक्वेंस तो 29 है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ तो ऑलरेडी 2 वर्ड्स का ही सिक्वेंस है और मैक्सिमम लेंथ है 29, तो मेरे को यहाँ पर पीछे 27 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये 29 के बराबर होगा। हियर इट इज 7 7 8 2, the length of a sequence is 3, but the maximum length is 29 again, तो मुझे यहाँ पर 26 zero I need to add at the end, so that I need to make the sequence equal, so you have to perform that thing only, find the maximum sequence length, and you have to perform padding। okay, that's what you have to do। okay, एंड पैडिंग यहाँ प्री लिखा है, जरूरी नहीं है, मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ, और पोस्ट ही सिखाई थी मैंने आपको। ओके, सो लेट मी प्रिंट इट sequences after performing the padding, ठीक है, after performing the padding let me print the control C, let me remove this thing। ओके, यहाँ पैडिंग प्री करी है। ओके, I can change it to post। okay, so you either you can have pre or either you can have post, most of the places you have seen the post padding है ना, पीछे लगा दो आप, तो आगे लगाने का, पीछे लगा दो आप, जीरो पीछे लगा दो, ठीक है, पहले प्रिंट करके बता देता हूँ मैं क्या आ रहा है, ये देखो। ओके, ये देखो, मैंने ये कहा था आपसे, अब उसने प्री पैडिंग कर दी ना, तो वो जीरो सारे आगे ठुक गए और 7 और 8 पीछे चला गया। पोस्ट करते तो 7 and 8 विल बी इन फ्रंट एंड रेस्ट ऑफ ऑल द जीरोस विल बी बैक साइड। सो यू कैन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, भाई मेरा सीक्वेंस 29 का हो गया, माई एवरी सीक्वेंस इज ऑफ 29, यू कैन सी एवरी सीक्वेंस इज ऑफ 29, देख लो आप। ओके, एट द एंड यहाँ तो कोई पैडिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही मैक्सिमम लेंथ है, यहाँ तो कोई पैडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम लेंथ है ना तो। ऑलराइट, फाइन, तो वो हो गया। ओके, फाइन, तो ये देख लीजिए, दिस इज पैड सीक्वेंसेस, पैडिंग कर दी मैंने। ओके, नाउ आई एम हैविंग ईच एंड एवरी सीक्वेंस इन equal length।
ये हो गया। पोस्ट भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक। उसके बाद क्या करा, कन्वर्ट इट इनटू अ नंपाई अरे, उसको अरे में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। सो लेट मी कंट्रोल सी, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी, ओके, control C, and let me remove this thing. Okay, let me add this thing to the next code, or I am converting this into array. ओके, अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ मैं, प्रिंट sequences after it is converted into array, and then print x also and print y also, print x and print y also. ओके, दोनों भी प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। ऑल राइट, सो लेट मी रन द कोड। ये रहा, कन्वर्टेड इनटू अरे। तो भाई वो अरे में तो मेरे को पहले ही नज़र आ रहा था, ये अरे ही तो है, ये अरे ही तो था। ओके, इट्स ऑलरेडी लुकिंग इन अरे फॉर्मेट ओनली। तो अरे ही है, तो अरे को अरे में क्या कन्वर्ट करो भाई, बन गया वो तो अरे ही है, ठीक है। इट्स कन्वर्टेड इनटू नंपाई अरे, ठीक है। ये क्या है, what it is, like 7, then 8, 7 8, okay, then 7 8 2, then 7 8 2 9, all these zeros, तो वैसे ही तो बन रहा है। ओके, इट्स लुकिंग लाइक दैट ओनली, तो ये अरे ही था वैसे ही, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर sequences while writing into np.array, and then x and y, these are printed। अब इसमें क्या प्रिंट करा मैंने, अंतर है, व्हाट इज द चेंज, x is sequences कोलन कॉमा कोलन -1, कोलन कॉमा कोलन -1, and y is sequences कोलन कॉमा -1। सो व्हाट इट इज, ये क्या बताना चाह रहा है, ओके, सो ये बताना चाह रहा है, देखिए हियर इसको अलग अलग करना पड़ेगा मुझे सेपरेटली, आइदर आई कैन हैव लाइक, ओके, कंट्रोल सी, and here let me write print, okay, print, मैं स्पेसेस दे देता हूँ, ओके, तो ठीक रहेगा। ऑल राइट, नाउ लेट मी री रन अगेन, ओके, सो दीज आर द y values, 8 to 9 10, ये y values हैं। हाउ आई गॉट द y वैल्यू, हाउ आई गॉट 8, हाउ आई गॉट 8, देखिए ये 7 है, 7 के बाद आएगा 8, ठीक है, 7 है, 7 के बाद द नेक्स्ट वर्ड विल बी 8, देन फिर ये 7 8 है, आफ्टर 7 8 द नेक्स्ट वर्ड विल बी 2 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, आप देख लो, आफ्टर 7 8 द नेक्स्ट वर्ड इज 2, okay, and then what next I am having, then 7 8 2, next word will be 9, वो जो मेरा सीक्वेंस में बन रहा है वो वही आएगा, नेक्स्ट वर्ड विल बी 9, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड विल बी 9, then 7 8 2 9, next word will be 10, then 7 8 2 9 10, the next word will be 3। तो ये मेरे पूरे y हैं, ओके, सो आई एम मेकिंग एक्स मैंने बनाया वो 29 की ही लेंथ का है, उसमें मैंने 7 से शुरुआत करा, तो 7 इज अ वर्ड, आफ्टर दैट 8 विल कम अकॉर्डिंग टू माई सिक्वेंस, ओके, मेरे सिक्वेंस के अकॉर्डिंग यही हो रहा है, अकॉर्डिंग टू माई सिक्वेंस। आप देखें आखिरी जो है ये द लास्ट वन, आप देखें, ओके, तो 7 के बाद 8 आ रहा है, आफ्टर 7 and 8 2 will come, and after 7 8 2 9 will come, ओके, तो इस तरीके से यू हैव क्रिएटेड x एंड y, ओके, आपने क्रिएट कर दिया x एंड y, ऑल राइट। तो आप देख सकते हैं कि हाउ द थिंग्स आर बीन गोइंग ऑन, ओके, एंड हाउ इट इज प्रिपेयरिंग इट्स x एंड y वैल्यूज, ओके, तो यहाँ 7 है,
फिर उसने बाद में सीक्वेंस में 7 8 कंसिडर कर लिया, देन 7 8 2 कर लिया, देन 7 8 2 9 कर लिया, देन 7 8 2 9 10 कर लिया। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा था वो उनका जो है उसको वाई पे दे दिया। इट्स कंसिडर्ड दैट ऑन वाई। ये आउटपुट है। इस तरीके से काम करा उन्होंने। ओके, फाइन, दैट्स हाउ दे आर डूइंग द वर्क। ओके, तो ये भी बता दिया मैंने आपको सीक्वेंसेस। तो हम व्हाट वी डिड सो फार, वी आर अवेलेबल विद द टेक्स्ट ओनली। Okay, we have converted this text into dictionary. Okay, that means we have identified the dictionary, that means unique words identify कर लिया हमने, और ये frequency पता कर लिया how many times it is coming. Then we converted it into a sequence, that means उसको numerical annotation दे दिया हमने, numerics में convert कर दिया, length भी निकाल दिया 29, and then I have created a sequence. Okay, so 7 8 7 8 2 7 8 2 9 ऐसा sequence बना दिया, उसकी padding कर दी ताकि सबको बराबर कर दिया। ओके, 29 29 सब बराबर हो गए। उसके बाद फिर देन आई क्रिएटेड एक्स एंड वाई। ओके, दिस इज द वे आई क्रिएटेड एक्स एंड वाई। तो एक्स में पहले 7 आया तो नेक्स्ट आएगा 8, 7 8 आया तो नेक्स्ट आएगा 2। ओके, देन सो ऑन, वो चलता रहेगा। ऑलराइट, सो आई क्रिएटेड एक्स एंड वाई। फाइन, सो ये एक्स एंड वाई भी क्रिएट हो गया, ये दिखा दिया मैंने आपको। एंड आफ्टर क्रिएटिंग एक्स एंड वाई, what I did is I perform one hot encoding. Okay, one hot encoding of y. Okay, of y. As many as number of words. You know about one hot encoding? Let me tell you. What does one hot encoding means? I hope you have heard about this thing also. Okay, so one hot encoding. See, for example, in a column, we are having, for example, in a column, we are having A, B, C. If I perform one hot encoding, okay, so it will create 3 different columns, A, B, and C. Okay, it will create 3 different columns with the help of one hot encoding. For example, now I am interpreting row number 1. Here A is there, so B and C will become 0. If I am interpreting row number 2, here B is present, A and C will become 0. If I am interpreting row number 3, C is there, A and B will come 0. So this is one hot encoding. So I am having all the unique values of Y, okay, like 8, 2, all these things are present. So इनके कॉलम बना दिए उसने वन हॉट एनकोड करके। Okay, it created columns, unique columns, created unique columns. अभी तो ये पूरे एक ही उसमें आ रहे हैं ना, currently they are coming in a same array. इसके कॉलम बना दिए उसने अलग अलग। सो 8 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। सो इन रो नंबर 1 इफ 8 is there, so 2 will become 0, 8 will be 1. ओके, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये वन हॉट एनकोडिंग हो गया। हम करते भी हैं, वी डू परफॉर्म इन मल्टी क्लासिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स ना, वहाँ पर वन हॉट एनकोडिंग करते हैं। ओके, फाइन, ये टास्क परफॉर्म हो गया। सो इट क्रिएटेड वन हॉट एनकोडिंग। फाइन, इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y, लेट मी प्रिंट y आल्सो। इसको भी प्रिंट कर दो, y को देख लेते हैं कि कैसा वन हॉट एनकोड करा उसने। ओके, कंट्रोल सी, इसको मैं उठा के नीचे लेकर जा रहा हूँ, कंट्रोल सी। ओके, रिमूव इट, मेक अ कोड हियर। ओके, फाइन, एंड लेट मी रन इट। ये देखो, इफ एनी ऑफ द डिजिट इज कमिंग, उसको 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। नाउ हियर इफ एनी ऑफ द डिजिट इज कमिंग, रेस्ट ऑल आर 0,
एनी ऑफ द डिजिट इज कमिंग वन, तो उसको कर दिया, बाकी सबको जीरो कर दिया। ये होता है वन हॉट एनकोडिंग। तो कुल मिला के ये 29 वर्ड्स हैं, तो 29 जो है ये होंगे। ओके, लेट मी चेक इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ वर्ड्स रिपीटेड है, जैसे इस, ए, द, वो रिपीटेड है, तो उनका अलग से कॉलम नहीं बनता। ठीक है, तो वी आर हैविंग 20 यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट। रिपीटेशन को हटा दो आप। ठीक है, ध्यान देना। इफ आई डू, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि टेक्स्ट में कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं। इस जो है, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, 3 टाइम्स आ रहा है वो। इन 29 3 टाइम्स इस, तो 1 टाइम कंसिडर करो, 2 कम कर दो। ठीक है, 2 विल बी रिड्यूस। फिर ए इज कमिंग हियर ऑल्सो, ए इज कमिंग हियर ऑल्सो, तो इसमें भी एक ही बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड देयर कुड बी ऑफ, ये अदर वर्ड्स भी हैं। ऑफ आ रहा है, यहाँ भी ऑफ आ रहा है। मशीन आ रहा है, मशीन यहाँ पर भी आ रहा है। मशीन लर्निंग आ रहा है ये। तो कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो ओनली 20 यूनिक वर्ड्स हैं ओवरऑल। रिपीटेशन को भी हटा दो आप। तो वन हॉट एनकोडिंग में यही होगा, इट्स गोइंग टू कंसिडर द यूनिक वर्ड्स। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोल रहा था, यहाँ बताया था ना कि सिर्फ जो होगा, ओके, वट एवर बी द न्यूमेरिकल अनोटेशन, जो वैल्यू होगी बस वो वन होगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ऑल राइट, तो जहां जहां पर ये वैल्यूज होंगी, ओके, बस उनको लेंगे एंड रेस्ट ऑल विल बी जीरोस। ठीक है, और इनको वन करेंगे, बाकी सबको जीरो करेंगे। ये होता है वन हॉट एनकोडिंग। ओके, गॉट इट। देन उसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट? वो मॉडल पे चला गया, अब ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा है, उसने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। नाउ आई एम हैविंग एवरीथिंग, एक्स वाई एवरीथिंग। नाउ आई कैन मेक अ मॉडल। ठीक है, मॉडल बना रहे हैं और वो एम्बेडिंग कर रहा है। एम्बेडिंग मैंने बताई दी आपको क्या होती है। नोटिस एम्बेडिंग, yesterday only we are performing the vectorization, that is the embedding. Okay, that means those words which are having the similar meaning, their vectors will be closer to each other. So here embedding is considered। वो टेक्स्ट है ना, तो एम्बेडिंग लगा रहा है वो। इनपुट डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टोकनाइजर वर्ड इंडेक्स प्लस वन। ओके, सो इफ आई नीड टू प्रिंट, ये क्या लफड़ा है जरा इसको देखें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोकनाइजर वर्ड इंडेक्स, इसको प्रिंट करते हैं जरा। इट इज़ 19, तो शायद जीरो 20 थे, तो जीरो से 19 कंसिडर कर रहा। ठीक है, तो ये है। ओके, ऑलराइट, जीरो से, ठीक है, या तो मेरी काउंटिंग में शायद हो गया हो कुछ, तो ऐसा 19 है ये टोटल। टोटल इंडेक्सेस आर, टोटल यूनिक वर्ड्स आर, और द जो भी है वो 19 है। तो इनपुट में जो है वी आर कंसिडरिंग दिस। ओके, प्लस, अच्छा प्लस वन है ना यार, कर तो दिया 20, वही मैं सोच रहा था कि। ठीक है, तो 19 प्लस वन 20। ठीक है, सो दैट इज द इनपुट डायमेंशन। आउटपुट ये कह रहा है 10। आउटपुट डायमेंशन इज 10, ये भी हमने डिसाइड करके दिया है यहाँ पर। इनपुट लेंथ इक्वल टू मैक्स लेंथ माइनस वन। सो एम्बेडिंग में वी आर हैविंग थ्री थिंग्स: इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट लेंथ। इनपुट डायमेंशन, आउटपुट डायमेंशन एंड द इनपुट लेंथ इनटू द एम्बेडिंग। ये तीन चीजें होती हैं एम्बेडिंग के अंदर। ओके, फाइन। एंड यस्टरडे लेक्चर को यदि आप देख लें, गो थ्रू करें, ये एम्बेडिंग वाली बातें बताई थी मैंने। ओके, कहाँ गया ये एम्बेडिंग? ओके फाइन, हियर इट इज, ये एम्बेडिंग। ओके, सो एम्बेडिंग कन्वर्ट हाई डायमेंशनल डेटा इनटू लो डायमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, हमने वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। ओके, फाइन। एंड वी डू हैव वेरियस एम्बेडिंग्स अवेलेबल, जैसे वर्ड टू वेक्टर ग्लोब ये है हमारे पास, जो कि फिक्स लेंथ वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो आप ये मान के चलें, आपने यहाँ वेक्टराइजेशन ही करा, और द वर्ड्स विच आर हैविंग कॉमन, मतलब कंटेक्स्ट की बात करें तो किंग क्वीन बोथ आर रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली। सो उनका जो वेक्टर्स होगा वो क्लोज होगा, क्लोज टू ईच अदर, इस तरीके से होगा। ऑल राइट, सो व्हाट वी आर डूइंग इज embeddings are learned through neural network, each word embedding
can be done using technique like this. However, we are not using any technique there. वहाँ कुछ कर नहीं रहे थे अपन, सिर्फ embedding layer लगाई है अपन. ठीक है, सिर्फ we are allowing a layer of embedding. ओके, तो जैसे ही वो लेयर से पास होता है कोई भी कैटेगरिकल डेटा इस पास थ्रू लेयर, इट विल कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर. वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. दीज वेक्टर्स आर बीन learned as a part of the model training process. ठीक है, that vector will be part of the model training process. ठीक है, तो वो कैटेगरिकल डेटा को वेक्टर में बदल देता है. दैट्स व्हाट एम्बेडिंग डू. ओके फाइन. तो यहाँ पर भाई हमने वही कुछ कर रहे हैं. ऑल राइट. सो ऑल राइट, कहाँ गया ये कोड है. सो वेक्टर्स में वी आर कन्वर्टिंग एंड वी आर मेकिंग अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. ओके, बना दिया, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना दिया. इसकी वर्किंग तो बता चुका हूँ, RNN की. एंड देन एक डेंस लेयर ऐड कर दिया. एंड सॉर्टमैक्स, वी आर गिविंग अ सॉर्टमैक्स क्योंकि we are having multi-classification problem. So what could be a next word present in a sequence? We are going to find the probability of it. Okay, that's what we are going to do. Yes, Mr. Adit, you can ask the question. Sir, in the embedding, we have passed output dimension 10. Hmm. So, an input dimension is 20. So, it will reduce Hmm. the 20 vector size into the 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 Ah, size. 10, 10. That's what And it's what mentioned, is no? that? According to the And the dimension. last Hmm. parameter, sir, input length, max length minus 1. What will that be? What is the max length? Okay, now print the max length also. What is the max length? Control C and Control V. What is the maximum length? It is 29. Okay, maximum length, that means your actual text, how many words are present in that. Not considering only the unique one, not considering only the unique. Okay, just how many words are present in your text? That is 29 words are present. So that's what the input length means. Because you are going to enter the entire input. Okay, that is the input length. Okay, that is the input length, entire text. Okay, here it is writing max length minus 1, that is 29 minus 1, 28. Okay, that's what it is writing according to indexing, what it is been showing. Okay, and here is the input dimension. Input dimension is the unique words which are present in the text. Okay, and this is the output dimension. Okay, so max is 29, minus 1, 28. The input will be 20, output will be 10. Okay, so you will be having an embedding layer that will take 20. Okay, you will be having an embedding layer that will take 20. This is embedded. It will take 20 as an input and it will give 10 as an output. Okay, 10. 1, 2, 3, whatever. Okay, so this is 20 and this is 10. Okay, so it's reducing. Okay, that might be considered as dimensionality reduction also. Dimensionality reduction. Obviously, it's performing the vectorization of the data and how the dimensional reduce. Let me show you. वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है एम्बेडिंग में, मैं बताता हूँ आपको वो क्या एग्जाम्पल है, उसने कम कैसे कर दिया. देखिए ये रहा. Suppose we are having a words man, woman, king and the queen. After training a word embedding model, we might have the following relationship: king minus man plus woman approx equal to queen. This indicates that the vector difference between king and the man is similar to the difference between queen and the woman, capturing gender relationship between the words. तो वो रिडक्शन इसीलिए हुआ. ठीक है, वो जो रिडक्शन हुआ है ये वेक्टर डिफरेंसेस उसने, क्योंकि किंग मैन. ओके, द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन किंग भी रॉयल, मैन तो किंग ही होगा ना, मैन ही होगा ना किंग. क्वीन भी रॉयल और वुमेन ही होगी क्वीन. ठीक है, तो जो वेक्टर डिफरेंसेस वो लगभग दोनों के बराबर होंगे. ठीक है, तो ये जो हो रहा है एग्जाम्पल ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स. ठीक है, इट विल कैप्चर द जेंडर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स. ऐसे काम कर रहा है. ठीक है, तो एम्बेडिंग क्या क्या करता है. डायमेंशनलिटी रिडक्शन एक तो कम कर दिया उसने, अभी आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है. ओके, ही आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर वो 20 लिया और 10 हो गया, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है. ओके, एम्बेडिंग रिड्यूसेस द डायमेंशन ऑफ द डेटा. ओके, वो 20 को 10 कर दिया.
ओके, मेकिंग इट ईजियर प्रोसेस टू एनालाइज एंड प्रिजर्व द एसेंशियल रिलेशनशिप। तो डायमेंशन कम कर तो दिया, लेकिन ये मत सोच लेना कि निपटा दिया तुमने किसी चीज को, नहीं, उसने रिलेशनशिप कैप्चर कर ली। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है रिलेशनशिप कैप्चर करने का, कि इफ आई एम हैविंग king, man, queen and the woman, and if I do subtract the vectors between these two, that the resultant will be, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक ही होगा, एक जैसा ही होगा, क्योंकि मीनिंग ये वही है ना यार, किंग होगा मैन, क्वीन होगी वुमेन, तो दोनों का जो आंसर आएगा लगभग सेम ही आएगा। तो उसने कम कर दिया इसी चक्कर में डायमेंशन, ये रिलेशनशिप कैप्चर कर ली उसने, ये काम करा एम्बेडिंग लेयर ने। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो ये इसका आंसर है, एग्जाम्पल भी अवेलेबल है मेरे पास वहाँ कोड में। ठीक है, ऑल राइट, ये करा। फिर आर एन एन तो लगाते हैं, वो लगाइए, 50 न्यूरॉन उठा दिया आर एन एन के अंदर। ओके, एंड बस ये हो जाए, उसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस, उसको हम शो करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन सॉर्ट मैक्स। सॉर्ट मैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन हो गया ना, यही आपका वही करता है, एलएलएम भी यही काम करता है। ओके, सो एलएलएम डू डिसाइड, फॉर एग्जांपल ये मैं लिखूं माय, तो वो ये करेगा नेम, या माय के बाद कुछ और वर्ड आएगा, या कुछ और वर्ड आएगा, या कुछ और वर्ड आएगा, या कुछ और वर्ड आएगा, और सबकी प्रोबेबिलिटी मेंशन करता है वो। तो शॉर्ट मैक्स यही कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रहा है। नेम की आने की प्रोबेबिलिटी 95% है, किसी और वर्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 2% है, किसी और आने की प्रोबेबिलिटी 1% है, किसी और की 0.05% है, एंड सो ऑन। सो वट एवर बी द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ द वर्ड, वो उससे सब्सटीट्यूट कर देगा, इट विल सब्सटीट्यूट। ठीक है, ये खेल है, यही करा जा रहा है। ओके, तो तभी एक्टिवेशन फंक्शन शॉर्ट मैक्स लिया। ओके, ये तो आपको पता ही है कि उन 20 यूनिक वर्ड्स में से कोई सा भी यूनिक वर्ड आ सकता है। तो डेंस लेयर में इतने न्यूरॉन लेना है, 20 न्यूरॉन लेना है डेंस लेयर पे, एक नहीं लेना भाई, हम कोई वो नहीं कर रहे, दैट मीन्स बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, 20 न्यूरॉन्स लेना है आपको, एंड एवरी न्यूरॉन विल गिव आउटपुट, एवरी न्यूरॉन विल गिव अ वर्ड, एंड दैट वर्ड इज फ्रॉम योर टेक्स्ट ओनली, है ना, वो वहीं से टेक्स्ट, क्योंकि वही तो ले रहे हो ना यार, उसी से तो मॉडल ट्रेन कर रहे हो ना भाई, वो ही देगा। बट उन सबकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो शॉर्ट मैक्स बताएगा कि आफ्टर गिविंग अ वर्ड एज एन इनपुट व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड, उन 20 में से कौन सा वर्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट द वर्ड विच इज हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कंसिडर इट। ओके, ये बताएगा। ये इतना सिंपल सा आर्किटेक्चर बन गया, कंपाइल कर दिया, फिट कर दिया। ओके, कंपाइल करके फिट कर दिया। ओके, यहाँ ट्रेनिंग परफॉर्म हुई। ओके, 100 इटरेशंस तक कर दिया। ओके, एक्यूरेसी 100% आ रही है, लॉस 0.7107 करके कुछ लॉस आ रहा है, लॉस कम होते चले जा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ती चली जा रही है। ओके, फाइन। और आप अब पूछ लो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। चलो, मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, अब मैं मॉडल से पूछता हूँ कि भाई बता दे कि माई टेक्स्ट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इस, तो इसके बाद अगला वर्ड क्या आएगा, लेट मी आस्क फ्रॉम द मॉडल। तो मैंने प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड के अंदर अपना मॉडल दे दिया, टोकनाइजर दे दिया, टेक्स्ट सिक्वेंसेस दे दिया। ओके, तो वट एवर बी द सेंटेंस यू आर गोइंग टू गिव इट, वो पहले टोकनाइज हो जाएगा, उसकी सिक्वेंसिंग हो जाएगी, और फिर हम उस मॉडल के अंदर उसको देकर प्रिडिक्शन करवा देंगे, दैट्स इट, और प्रिडिक्शन रिटर्न कर देंगे, यही करा है। सो इफ आई एम आस्किंग मशीन लर्निंग इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, लेट मी रन द कोड, वो बता रहा द, वो सीख गया कि अगला वर्ड, तो आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना ऐसे ही काम करता है, उसको नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा उसको पता है, वो यही तो करता है, वो डिस्प्ले यही करता है। ठीक है, ऑल राइट। सो मशीन लर्निंग इज द, बता दिया उसने। आपको टेस्ट करना है, आप कोई और दूसरा भी देख लो यार, कोई इशू नहीं है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यदि आपको देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल सिर्फ आर्टिफिशियल ही दिया मैंने, तो छोड़ो, लेट मी गिव ओनली आर्टिफिशियल। देखते हैं अगला वर्ड क्या है। आर्टिफिशियलस। अब यार जैसे वो मॉडल है भाई, अभी तो बहुत छोटा टेक्स्ट दिया है, फिर भी वो प्रिडिक्शन तो करके दे रहा है आपको अगला वर्ड। ओके, फाइन, इंटेलिजेंस भी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, जितना वो सीख पाया उसने बता दिया। दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द न्यू वर्ड इन अ सीक्वेंस। I hope this makes sense. Okay, so very important class. Okay, how to predict a next word in a sequence using RNN. All right, all right. Let me stop presenting. Let me